Hello everyone, this is Preeti Ghosh and today we are going to start with another chapter of class 5, chapter 6, safety and first aid. If you are new to my channel, do consider subscribing it and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on my Facebook page. The link is given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. Today, our first topic for discussion is safety on roads. We should observe the following safety rules on the roads. First one, before crossing the road, check properly that no vehicle is coming from either direction. तो जब हम रोड पे चल रहे हों या रोड पे हैं तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. उनमें से जो पहला है दैट इज़ वी शुड ऑलवेज चेक प्रॉपरली कि रास्ते के या रोड के दोनों तरफ से कोई व्हीकल ना आ रहा हो एंड देन वी शुड क्रॉस द रोड. नेक्स्ट, cross the road at zebra crossing. If there is no zebra crossing, then make sure that there is no traffic from either side. If possible, use subway or pedestrian bridge to cross the road. It is safest way of crossing the road. So when we are crossing the road, we should always cross it at zebra crossing. हमें zebra crossing पे ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. अगर कोई zebra crossing वहाँ पे नहीं है तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सड़क के दोनों तरफ से कोई व्हीकल नहीं आ रहा हो या दोनों तरफ में कोई भी ट्रैफिक ना हो. And if possible, we should cross the road from by using subway or pedestrian bridge. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, यू शुड नेवर प्ले ऑन द रोड एंड देन रीड द रोड साइंस प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दे इम्पार्ट. तो कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए और रोड पे जो रोड साइंस दिए हुए होते हैं उसको अंडरस्टैंड करके वो क्या इंफॉर्मेशन हमें देना चाहते हैं वो समझने की कोशिश करनी चाहिए. लेट अस सी फ्यू ऑफ द रोड साइंस. So here you can see images of some important road signs with their meaning. So here is the image of U-turn prohibited, means इस जगह पे U-turn लेना मना है. Then here is the sign which says school ahead. Here is one way, then speed breaker ahead. So these are few of the road signs that we should be careful about and try to understand what information they are trying to give us. Clear? Next, moving on to the safety measures we should take at home. Now, most accidents occur at home due to our negligence. Observe the following safety rules to avoid them. तो घर पे काफ़ी accidents हो जाते हैं because we are so much neglected to those things. So we should follow these safety measures to avoid those accidents at home. क्या है? पहला क्या है? Keep your toys, books or other belongings on their proper place. Do not scatter them on the floor. They can hurt someone. So हमारे जो खिलौने या बुक्स या जो भी हमारी चीज़ें हैं उसको प्रॉपरली उसकी जगह पे ही रखना चाहिए. अगर हम उसको फ्लोर पे इधर उधर फेंक के रखेंगे तो वो किसी ना किसी को हर्ट ज़रूर कर देगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, नेवर प्ले ऑन स्टेयर्स, टेरेस और अदर एलिवेटेड प्लेसेस. कभी भी सीढ़ियों पे या छत पे या फिर जो ऊंची जगहों पे है वहाँ पे खेलना नहीं चाहिए. वाई? बिकॉज फॉलिंग डाउन फ्रॉम देयर मे कॉज सिवियर इंजरीज. क्योंकि अगर हम वहाँ से गिर गए किसी केयरलेसनेस या किसी नेग्लिजेंस की वजह से तो दैट इंजरी विल बी वेरी मच सिवियर. ठीक है. नेक्स्ट इज keep the bathroom clean. Do not leave water with soap or detergent on the floor. Bathroom injuries are very fatal. तो कई बार क्या होता है जो फर्श पे बाथरूम के फ्लोर्स पे क्या होता है सोप वाटर या डिटर्जेंट का पानी रह जाने पे क्या होता है वी स्लिप एंड वी जस्ट इंजर ourselves, isn't it? So कभी भी बाथरूम के फ्लोर को डिटर्जेंट या सोप के वाटर नहीं होना चाहिए. उस पर कोई डिटर्जेंट या सोप वाटर नहीं होना चाहिए. बाथरूम हमेशा क्लीन होना चाहिए. इससे क्या होता है जो बाथरूम इंजरीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेटल होती है, बहुत ही जानलेवा होती है, दैट कुड बी अवॉइडेड. ठीक है.
Next measure is never play with sharp objects like knife, blades, etc. Playing with these objects can hurt you and cause tetanus. तो हमें कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट से खेलना नहीं चाहिए, जैसे कि नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया, इनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए. क्यों? बिकॉज अगर हम इनके साथ खेलते हैं और हमें चोट लग सकती है, प्लस हमें टिटेनस हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ गैस लीक, यूजुअली क्या होता है, गैस लीक हो जाता है घर पे. ठीक है. उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ गैस लीक ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज of your home. Do not switch on lights. Inform your elders. Immediately call a mechanic to repair the leak. तो अगर कभी भी घर पे गैस लीक हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? As you can see in this image, we should always open the windows and doors of that kitchen. ठीक है. और स्विच बोर्ड को, स्विच ऑफ लाइट्स के स्विचेस को हाथ नहीं लगाना चाहिए. ठीक है. एंड जल्द से जल्द क्या करना चाहिए? हमसे कोई बड़ा अगर हो तो उसको बुला लेना चाहिए, मैकेनिक को बुला लेना चाहिए टू करेक्ट दैट लीक और टू रिपेयर दैट लीक. क्लियर? नेक्स्ट इज सेफ्टी फ्रॉम फायर. Now, domestic fires and kitchen injuries are most common examples of accident due to carelessness. Most fires occur while working in the kitchen or while using electric gadgets. To prevent these, following instructions should be followed. तो डोमेस्टिक फायर्स जो होती हैं मीन्स जो घर पे किसी केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस की वजह से लग जाती हैं, एंड मोस्टली क्या होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ किचन इंजरीज, जो कि किचन में काम करते टाइम किसी लापरवाही की वजह से लग जाती है, या फिर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का कुछ ख़राब हो जाने से जो लग जाती हैं, दोज आर द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक फायर्स, इजंट इट? सो उनको प्रिवेंट करने के लिए या उनसे बचने के लिए व्हाट ऑल द मेजर्स और इंस्ट्रक्शंस वी शुड फॉलो, हियर आर फ्यू ऑफ देम लिस्टेड. ठीक है. फर्स्ट क्या है? यूज प्रॉपर क्लॉथ्स, डस्टर्स टू अवॉइड हॉट पॉट्स एंड पैन्स इंस्टेड ऑफ योर ओन क्लोथ्स. तो जब हम किसी गर्म यूटेंसिल को पकड़ रहे हैं इन किचन, वी शुड यूज़ प्रॉपर सेपरेट क्लॉथ्स और डस्टर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर ओन क्लोथ्स. ठीक है. हमें खुद के ड्रेस या दुपट्टे से उसको नहीं पकड़ना है, हमें उसके लिए एक सेपरेट क्लॉथ रखना है, प्रॉपर क्लॉथ रखना है. ठीक है. नेक्स्ट इज गेट ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट्स चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है. अब क्या करना है? जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स की वजह से जो फायर्स होती है उनको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक गैजेट्स को हमेशा चेक करते रहना है कि इफ़ दे आर इन अ गुड कंडीशन और नॉट. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ अ क्रैक इज सीन इन प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एनी वायर, गेट इट रिप्लेस्ड. अगर किसी भी प्लास्टिक कवरिंग जो वायर के ऊपर होती है उसमें कोई क्रैक हमें नज़र आता है तो हमें तुरंत ही उसको रिप्लेस कर लेना चाहिए, उसको रिपेयर कर लेना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज नेवर कीप अ केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर. If it gets knocked over, the oil gets spilled, resulting in a fire. तो कभी भी कोई जो केरोसिन स्टोव होता है, here you can see, we should not keep a kerosene stove on the floor. इससे क्या होगा? अगर ये केरोसिन स्टोव गिर गया तो फिर इसके अंदर जो केरोसिन ऑयल है that will get spilled, वो पूरी जगह पे फैल जाएगा and that will cause a big fire and a very big accident in our home. Clear? Next, if the oil in the pan catches fire, smoother the fire by covering the pan. Throw some baking soda on the burning oil. Never throw water, it will splatter the oil and spread the fire. अब क्या करना है? अगर किसी तेल में, हमने एक पैन में तेल लिया है और उस ऑयल में फायर पकड़ चुका है, तो हमें क्या करना है? उस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस पैन को कवर कर देना है. ऑल्सो वी कैन ऐड अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ओवर दैट बर्निंग ऑयल, बट हमें कभी भी उसके ऊपर पानी नहीं फेंकना. इससे क्या होगा? वो ऑयल जो है, हमें पता है कि ऑयल एंड वाटर नेवर मिक्सेस, ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, तो वो क्या करेगा? वो और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है.
Next is never wear nylon or other synthetic clothes in the kitchen while burning crackers or during Diwali. हमें कभी भी कोई सिंथेटिक या लाइन की क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए किचन में काम करते वक्त, या फिर कोई क्रैकर्स जब हम बर्न कर रहे हैं तब भी हमें कोई लाइलन या सिंथेटिक के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. वाई? बिकॉज दे कैच फायर वेरी इजीली. कॉटन क्लोथ्स आर सेफर टू वेयर. बिकॉज उस टाइप के क्लोथ्स मीन्स लाइलन और सिंथेटिक क्लोथ्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं. बट कॉटन क्लोथ्स विल नॉट बी लाइक दैट. तो इसीलिए कॉटन क्लोथ्स क्या है, सेफ है टू वेयर इन दोज सिचुएशंस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिवेंशन फ्रॉम फायर. ठीक है, तो पहला क्या है कि टू कीप बर्निंग फायर नीड्स एयर. फायर को बर्न होने के लिए क्या ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है. तो सबसे पहला मेथड जिससे हम फायर को स्टॉप कर सकते हैं इज़ बाय कट ऑफ द एयर सप्लाई. अगर एयर का सप्लाई बंद हो जाए तो फायर भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि फायर को जलने के लिए या फायर को बर्न होने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है. नाउ थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर कट्स ऑफ एयर सप्लाई बाय कवरिंग द सब्सटेंस ऑन फायर. तो अगर हम सैंड या मड उसके ऊपर फेंकते हैं तो हम एक तरीके से जो सब्सटेंस है उससे जो एयर का सप्लाई है दैट वी कुड एबल टू कट ऑफ. अगर हम एयर का सप्लाई वहाँ पे कट ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मड एंड सैंड, तो हम उस फायर को भी रोक सकते हैं. ठीक है. Next is pouring water over the fire. Cools down the burning substance and also cuts off its air supply. अब हम जब देखते हैं किसी किसी केसेस में हम फायर को बर्न करने के लिए वाटर देते हैं. दिस इज़ बिकॉज वाटर डालने से क्या होता है, जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है वो ठंडा हो जाता है जिससे एंड उसका जो फायर का जो एयर सप्लाई है वो भी बंद हो जाता है, जिससे कि वो फायर भी बंद हो सकता है. ठीक है. Next is fire caused by electricity can be put off by throwing sand over it. There are special fire extinguishers to put off such fire. ठीक है. अब क्या होता है, जो फायर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के किसी कॉज की वजह से हुई है, उस फायर को हम रोक सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं बाय थ्रोइंग सैंड ओवर दैट फायर. या फिर कुछ स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं जिसकी मदद से हम जो फायर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुई है उसको भी बंद कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर फायर एक्सटिंग्विशर? अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर. फायर एक्सटिंग्विशर जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं. ठीक है. इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द फायर. वो क्या करता है, वो जो एयर सप्लाई होता है उस फायर के लिए वो बंद करवा देता है. ठीक है. नाउ वाटर शुड नेवर बी थ्रोन ओवर अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. अभी हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई आग लगी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पर सैंड थ्रो करना चाहिए, बट कभी भी वाटर नहीं थ्रो करना चाहिए. ठीक है. बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर. वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, वाटर के थ्रू पास कर सकता है. एंड गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू पर्सन हु टचेस इट. एंड किसी भी इंसान को शॉक दे सकता है जो भी उसको छुएगा. क्लियर? नेक्स्ट मेजर क्या है, नेवर थ्रो वाटर ओवर बर्निंग केरोसिन और पेट्रोल. जैसा कि किसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगी है उस पर कभी वाटर नहीं फेंकना चाहिए, उसी तरह केरोसिन या डीजल मीन्स ऑयल पे अगर कोई आग लगी है तो उस पर भी कभी वाटर नहीं फेंकना चाहिए. These are lighter than water and float over water and will continue burning. क्यों? क्योंकि ये जो ऑयल है वो वाटर से लाइट होता है. ठीक है. अगर वो वाटर से हल्का होता है तो वो क्या करेगा, वो वाटर के ऊपर फ्लो करता रहेगा और इससे कुछ नहीं होगा, इससे उसका जो एयर सप्लाई है वो कट ऑफ नहीं होगा एंड वो कंटिन्यू बर्न करता जाएगा. ठीक है. नाउ इन केस द फायर इज सिवियर कॉल द हेल्प. डायल 101 एंड कॉल फॉर फायर ब्रिगेड. अगर
जो फायर है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा भयंकर है और हम इन सब मेजर्स को यूज़ करके उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो वी शुड डेफिनेटली कॉल फॉर हेल्प बाय डायलिंग 101 विच इज़ द नंबर ऑफ फायर ब्रिगेड. ठीक है. इफ़ क्लोथ्स कैच फायर, रोल ऑन द ग्राउंड. अगर कपड़ों पे आग लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्लोर पे रोल डाउन करना चाहिए. This cuts off the air supply to the fire and puts it out. If a blanket or a rug is available, rolling up in it is more effective. तो अगर हमारे कपड़ों पे आग लगती है, जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्लोर पे रोल डाउन रोल ऑन करना चाहिए. और अगर हमारे पास कोई ब्लैंकेट है, कोई मोटा कोई रग है, तो इट इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव कि हम उसको फोल्ड करके उसके वहाँ पे रोल करें. इससे क्या होगा, जल्दी से उसका जो एयर सप्लाई है, फायर का जो एयर सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फायर भी बंद हो जाएगा. क्लियर? So students, these were few of the safety measures that we can follow while we are on roads or at home. Then there are few preventive measures from fire. So in our next video, we are going to continue with this chapter only. So till then, stay tuned and thank you.